So here, just look at the question. What it says: if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle, means that the diagonal BD and AC, they are going to be intersect and they form the right angle. Right angle means that all the angles going to be 90 degree, right? Then what we have to prove? The quadrilateral going to be become the rhombus. And what the property of the rhombus? The all sides should be equal. Means that AB equals to BC equals to CD equals to the DA. This we have to prove, right? This we have to prove. What it gave, right? What it gave, क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है कि जो भी हमारे डायगोनल्स हैं, आई मीन दिस AC, सॉरी नॉट AD, दिस इज AC, this is AC. AC is the diagonal and BD is also second diagonal and both are intersect perpendicular. It means that the angle formed by the these two lines which is intersecting each other, right? So what is the angle they form? The COD, then angle DOA and the angle AOB and the angle COB. These four angles they formed and they all are what? 90 degree. All are what? 90 degree. Now you see 90 degree and this is also 90 degree, right? एक बात बताइए, जब कोई भी आई मीन दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? और वो परपेंडिकुलर है, इट मींस दैट दे आर इक्वली बाइसेक्ट आल्सो, दे आर गोइंग टू बी इक्वली बाइसेक्ट आल्सो, राइट? इट मींस दैट OB इक्वल्स टू व्हाट? OD एंड OA इक्वल्स टू व्हाट? OC, राइट? अब देखो, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंट में, क्या प्रॉपर्टी थी? SAS, साइड एंगल एंड साइड. नाउ जस्ट अप्लाई दैट प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DOA. जस्ट लुक एट द ट्रायंगल DOA. इन ट्रायंगल DOA, राइट? क्या हम लगा सकते हैं कि ये वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में जो एंगल है, राइट? इसके फ्रंट वाली साइड एंगल, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, राइट? अब ये देखो, द ट्रायंगल DOA एंड एंड and the triangle DOC, triangle DOC, both are going to be congruent because you see, now just look at this side is common for the both the triangle, this side is going to be common for the both the triangle DOC and the triangle DOA कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, मतलब यही साइड है दोनों के लिए, ठीक है? अब देखो, जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA बराबर किसके? OC की, मींस दैट दिस साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. नाउ यू सी कि ये 90 के सामने वाला फ्रंट साइड और ये 90 के साइड साइड, ठीक है ना? ऑल पहली बात तो दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए. इट मींस दैट आई कैन से दैट AD इक्वल्स टू CD, ये कह सकते हैं, राइट? और इसके अलावा ये एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ये, ठीक है ना? एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी दिस, राइट? तो दोनों ट्रायंगल अपन आपस में बराबर हो गए, आपस में आई मीन कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल भी आपस में सेम हो गए. हमने ये प्रूव कर दिया AD बराबर CD, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू बी अप्लाई द सेम प्रॉपर्टीज इन ट्रायंगल AOB. दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BOC. Now just see, OB is the side which is common for the both the triangle AOB, either BOC, right? And OB, OA and OC are same. OA and OC are having equal length, right? And this angle is 90 degree and this is also 90 degree, right? It means that इसके सामने वाली साइड की लेंथ और इसके सामने वाली साइड की लेंथ क्या होने वाली है? इक्वल, बिकॉज द बोथ द एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल. इट मींस दैट क्या लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC, राइट? नाउ यू सी कि ये सारी इक्वल हो गई. दिस इज गोइंग टू बी A and you see the all the sides are equal. The diagonals are perpendicular to the each other and that is the property of what? That is the property of rhombus. So this was the proof. Once you know the triangles theorem, right? Corollary which is drawn from the triangle topic, right? And the congruent properties of the triangle, then you can easily able to prove any geometrical shape by converting any typical geometrical shape into standard triangles. And now then after you can apply the congruent properties with the triangle, then you are able to be prove that whatever they are asking, right? So this was the first question, theorem. So we have successfully completed and proved, right? Now look at the second problem. What it says that, कि जो AC लेंथ है बेटा, AC लेंथ है, दिस इज AC इक्वल्स टू द ए, राइट? दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड. नाउ यू सी, इस साइड के सामने अगर अगर हम ट्रायंगल इसकी बात करें ACE की, ये साइड इक्वल है, इट मींस ये एंगल इक्वल होने वाला है कि नहीं? ये एंगल किसके इक्वल होने, बिकॉज़ दिस साइड इक्वल्स टू दिस. अब इसके सामने कौन सा एंगल है बेटा बेटा? ये वाला. इट मींस दैट अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? Right, because this is the property of the congruent triangle, right? Now you see what it, another data given, AB is the length equals to the AD, AB is the length equals to what? AD, right? And the angle BAD, this angle equals to the angle EAC, this one, right? Now what we have to prove, that BC equals to the DE. BC means this side equals to BC equals to the DE. ये हमें प्रूव करना है ज्योमेट्रिकली, राइट? सो जैसा इन्होंने दिया हुआ डेटा आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? एंगल BAD दिया हुआ है, बराबर है एंगल EAC के, राइट? अब आप क्या करिए कि इस ज्योमेट्री में BAD में अगर हम ये वाला एंगल और ऐड कर दें, ये वाला एंगल, तो हमारा ट्रायंगल क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा ट्रायंगल? BAC, ये ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें कौन कौन से एंगल होंगे? आपका एंगल एक तो होगा BAD प्लस DAC, यही एंगल होगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब देखो नेक्स्ट देखो,
ईएसी, ईएसी जो एंगल ईएसी है, अगर उसमें मैं इतना ट्रायंगल और ऐड कर दूं, ये वाला एंगल और अगर मैं ऐड कर दूं, एक बार इसको रफ करते हैं, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से समझ पाए उस चीज को प्रॉपरली, राइट। क्या कह रहे हैं कि अगर अगर जो आपका एंगल है ईएसी, 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 ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसमें ही एक चीज और ऐड कर दूं, कौन सी, एंगल डीएसी, मतलब ये वाला एंगल और ऐड कर दूं, राइट, तो हम एक ये ट्रायंगल मान सकते हैं क्या, एडीई, दिस इज गोइंग टू बी वन ट्रायंगल, दिस इज गोइंग टू बी वन ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल हमने ये माना था बेटा, ये ट्रायंगल माना था, अगर आपको याद हो, अभी जस्ट इससे पहले जब हम इसकी बात कर रहे थे, इससे हमारा कौन सा ट्रायंगल बना, बताओ बेटा, ट्रायंगल बना बी ए सी, और इससे कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल डी ए बी, राइट, यही ट्रायंगल बने। अब देखो, जब जब ट्रायंगल में, जब हमें पता है हमने इक्वल एंगल ऐड किया है, जब इक्वल एंगल ऐड किया है दोनों में, और ये चीज ऑलरेडी बराबर थी, मतलब हम इक्वल, जैसे अगर ये 2 है, अगर ये 2 है, इसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, इट मींस इट डजंट अफेक्ट द इक्वालिटी, डजंट अफेक्ट द इक्वालिटी। नाउ यू सी, हमारा ट्रायंगल क्या बन गया, बीएसी, बीएसी, राइट, बीएसी में ये वाला एंगल पूरा बराबर है किसके, ट्रायंगल डीएई में इस वाले के, इट मींस दैट, और हमने क्या बताया था सबसे पहले जब ट्रायंगल की क्लास शुरू हुई थी बेटा, तो हमने क्या बताया था, हमने यही बताया था द एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रंट साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, राइट, मतलब अगर ये एंगल इस चीज के बराबर है, तो इसके सामने वाली जो साइड आ रही है, उस एंगल को जो फॉर्म करने वाली है वो कौन सी है, इस ट्रायंगल में जो आप ये वाली एंगल है, जो साइड फॉर्म होने वाली वो कौन सी है, वो कौन सी है, बीसी, राइट, और इस एंगल के सामने वाली जो साइड फॉर्म होने वाली वो कौन सी साइड है बताओ इस ट्रायंगल में, दैट इज डी। और जब इनके आपस के एंगल बराबर है, इट मींस ये साइड भी बराबर होने वाली है, ये लेंथ भी बराबर होने वाली है, और यही हमें प्रूव करना था बेटा, यही हमें प्रूव करना था। बाकी और देखो, ए बी दिया हुआ है, ए बी किसके बराबर है बताओ, यहाँ पे ए सी किसके बराबर है, ए सी, नाउ यू सी, ए सी बराबर है किसके, ए के, और ए बी बराबर किसके हैं, एडी के, ए बी किसके बराबर, एडी के, राइट। सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू अप्लाई द साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, इससे पहले भी हमने वही प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, साइड एंगल एंड साइड, राइट। सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू प्रूव, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। So we are able to, I mean, proved that the length of the BC side will be equals to the DE, because in front angle is going to be equal, right? Because of the equal increment in the given angle, equal increment in the given angle, right? So that's how we can prove the any geometrical shape. Right, now comes to the third question, right? This question little bit going to be, I mean, lengthy, right? What it given, the given figure shows that the parallelogram ABCD, right? Parallelogram means the sides are, I mean, sides are parallel, right? The front sides are parallel, right? Square ABPQ means that this is, I assume this is the side A. अब ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर क्या है, ABPQ means that this is also A, this is also A, and this is also A, right? And ADRS मतलब if this is going to be A dash, this is going to be A dash, then this is also A dash, because ADRS are square, this is also A dash and this is also A dash, right? So हमें क्या प्रूव करना है, the angle SAQ, this is the angle, right? Angle SAQ equals to the angle ABC, ABC, right? तो हमें प्रूव क्या करना है बेटा, फर्स्ट प्रूव हमारा क्या है कि SAQ एंगल इक्वल होगा ABC के। लेट्स हाउ वी कैन अप्लाई द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी, आई मीन, प्रूव दिस। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू बी प्रूव, हम क्या मान के चल रहे हैं कि एंगल जो ABC है दैट इज गोइंग टू बी एक्स, राइट, एक्स है, और दिया क्या है बेटा, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल DAB, जरा देखो DAB कहाँ पे है, DAB, एंगल DAB, राइट, प्लस एंगल एंगल ABC, DAB प्लस एंगल ABC, एंगल ABC equals to the 180 degree, right? This is the property of the parallelogram, the adjacent angle, right? DAB means this angle, right? If means that कि अगर इस ये, because this is the part of the parallelogram, then this side parallel to this side, right? So ये वाला जो भी एंगल होगा उसका, because and this AB if you are going to be extend this total angle is what, this is 180 degree, and ये एंगल जो निकल गया प्लस ये एंगल, सारा एंगल मिला के कितना है 180 डिग्री, then I can write this equation number 1, I can write, yes we can write, now you see कि एंगल DAB और ABC को हमने क्या माना, ABC को हमने क्या माना, x माना है, then we can write this very easily, and now angle DAB क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस x, we can write, now you see consider the angle around the point A के करस्पॉन्डिंग हम कौन से एंगल कंसीडर करने वाले हैं, सबसे पहला एंगल है एंगल SAQ को ही हमें प्रूव कर देना है कि ये क्या आने वाला है, अगर हमारा ये x आ जाए देन our proof is successful, because angle ABC should be equals to the SAQ equals to x, because both are angle we are going to be proved that both angle are going to be same। तो हमने पहले क्या माना हुआ कि एंगल SAQ प्लस SAD, SAQ प्लस SAQ प्लस SAD, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट। नाउ यू सी एंड प्लस प्लस इसके अलावा क्या करें, QAB मतलब ये वाला एंगल प्लस DAB मींस ये वाला एंगल। अब आप ये देखो कि इन्होंने चारों एंगल ले लिए कि नहीं ले लिए, ये पूरा पूरा सर्किल बन गया कि नहीं बन गया, देखो ध्यान से, एस ए क्यू ये आ गया, एस ए डी ये वाला एंगल आ गया,
फिर इन्होंने कहा क्यू ए बी ये वाला एंगल आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला डी ए बी ये वाला एंगल आ गया। इट मीन्स दैट ये सारे एंगल मिला के समेशन क्या हो गया 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया 360 डिग्री। नाउ यू सी यस ए क्यू ये तो हमें नहीं पता है कितना होगा, ठीक है ना, बट इट शुड बिकम एक्स, देन वी आर सक्सेसफुली एबल टू proved, otherwise we are going to be fail with this theorem, right? Now you see yes ad because this is the square, this is the part of the square and this is also the square, this is also square, right? So yes ad कितना है बेटा 90 डिग्री and QAB कितना है 90 डिग्री एंड एंगल DAB हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निकाला DAB कितना है 180 डिग्री माइनस एक्स। नाउ यू सी एंड इसके इक्वल टू कितना आएगा 360। नाउ यू सी 90 90 एंड 180, दिस इज गोइंग टू बी 360, दिस इज गोइंग टू बी 360 एंड 360 गोइंग टू बी कैंसिल आउट विद 360। नाउ यू सी कि एंगल यस ए क्यू इट बिकम व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी एक्स एंड यही हमने माना था कि हमारा एबीसी एंगल क्या था बेटा, एंगल एबीसी एंगल क्या था, दैट इज एक्स। नाउ यू सी बोथ द एंगल कम्स एक्स, इट मींस दैट द एंगल yes AQ equals to angle ABC. This is our the proof, right? I hope you guys are understood this concept as well, right? Adjacent angle concept I already explained to you, right? Now comes to the next proof. Next proof क्या कह रहा है कि जब हमारा ये एंगल ये प्रूव हो गया कि यस ए क्यू बराबर है, दिस प्रूफ ऑलरेडी वी हैव डन, राइट? व्हाट द नेक्स्ट, एस क्यू इक्वल्स टू द एसी, एस क्यू इक्वल्स टू द एसी, इट मींस दैट इफ आई एम गोइंग टू जॉइन दिस एस क्यू इक्वल्स टू द एसी। अब देखो इसमें कोई ये कोई प्रूफ बचा ही नहीं है, अगर आप देखा जाए कोई भी प्रूफ नहीं बचा है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, राइट? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। क्या कर सकते हैं, नाउ यू सी कि हमने ये वाली साइड ए बी क्या मानी थी, दिस इज ए, यही हमने मानी थी ए, और इधर देखो ये मानी थी, राइट? बीसी के बारे में हमें नहीं पता है, बट ए क्यू हमने क्या मानी थी, दिस इज, ये हमने क्या मानी थी, दिस इज ए क्यू देखो ए क्यू, बिकॉज दिस इज द वन स्क्वायर, सो दिस साइड वाज द ए एंड दिस इज आल्सो ए। एन ए एस क्या मानी थी, ए एस मानी थी ए डैश, ये क्या मानी थी बेटा ए डैश, राइट? ए डैश एंड यू सी दीज लाइंस आर पैरेलल, सो बीसी साइड इज आल्सो इक्वल्स टू व्हाट, बीसी साइड आल्सो इक्वल्स टू व्हाट ए डैश, राइट? नाउ यू सी अभी अभी जस्ट हमने बेटा एक चीज अभी अभी हमने एक थ्योरम देखी थी, मतलब इससे पहले जस्ट, और अभी हम दो बार अप्लाई कर चुके हैं साइड एंगल साइड थ्योरम, साइड थ्योरम, यस राइट, मींस दिस साइड एंड दिस एंगल, राइट? नाउ यू सी यस ए क्यू ये एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, और जो ए क्यू साइड है वो किसके बराबर है, ए क्यू साइड इसके बराबर है। अगर सोचो ए क्यू साइड ए बी के बराबर है, मतलब ए क्यू के सामने वाला एंगल क्या हुआ, ये एंगल, दिस इज द एंगल, एंड इसके सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, ये एंगल, मतलब ए क्यू के सामने वाला एंगल ये दिस एंगल वन इक्वल्स टू द ए बी के सामने वाला एंगल, दिस इज वन डैश, इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो बीसी के सामने वाला एंगल दिस इज टू डैश, राइट? टू डैश, बिकॉज बीसी लेंथ इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे ए एस के सामने वाला एंगल कौन सा है, दिस इज टू, राइट? तो टू डैश किसके बराबर होगा, टू, मतलब तो तीनों ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ये ट्रायंगल यस ए क्यू हो गए कॉन्ग्रुएंट इसके ट्रायंगल ए बी सी के। या तो आप ऐसे कहिए कि उसी उसी पहली चीज, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, क्या लिखते हैं, सेम पैटर्न पे लिखेंगे, मतलब जैसे यस वाला पॉइंट किससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है बेटा, बिकॉज दिस इज एंगल वन, ठीक है ना, वन इज मैच विद द वन डैश, इट मींस दैट सी, एंड ए पॉइंट किससे मैच कर रहा है, दिस इज बी से मैच कर रहा है, और क्यू पॉइंट किससे मैच कर रहा है, इससे ए से। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू राइट ट्रायंगल एस ए क्यू कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल सी ए बी, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट, बोथ आर सेम, तो इनके सामने वाली साइड की लेंथ भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, बिल्कुल सेम होने वाली है, राइट? दिस इज द सेकंड प्रूफ, राइट? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, क्या कह रहा है, इफ टू एंगल्स, अब देखो वहां पे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था कि साइड एंगल एंड साइड, अगर ये और ये साइड एंगल, राइट? नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंट सेकंड प्रॉपर्टी, द एंगल साइड एंड एंगल, राइट? नाउ यू सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल, राइट, इनके बीच में फंसी हुई साइड, मतलब ये एंगल एंगल साइड एंगल, राइट? द two angles and the include side of one triangle are equals to the two angle and the include side of the other triangle, two angles of the include side of the another triangle, right? So abbreviation क्या है इसका, ASA, right? तो मतलब एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ए बी साइड बराबर है एंगल डी ई के, सॉरी साइड डी ई के। अब आप बताओ जब एंगल बराबर हो गए, मतलब एंगल ए बराबर है किसके, डी के, तो ए के सामने वाली साइड मतलब बीसी ऑटोमेटिक किसके बराबर हो गई, बताओ बेटा? बीसी ऑटोमेटिक किसके बराबर हो गई, ईएफ के बराबर हो गई, बिकॉज प्रॉपर्टीज है कि एंगल अगर इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी, राइट? अब देखो एंगल बी, देखो एंगल बी के सामने साइड कौन सी, एसी, राइट? तो एसी बराबर किसके होगी, बिकॉज एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, एसी मतलब ये डी एफ बराबर हो गई, राइट? डी एफ बराबर हो गई, और ए बी जब बराबर है, ए बी किसके बराबर है बताओ, ए बी किसके बराबर है, डीई के, तो ए बी के सामने वाला एंगल मतलब एंगल सी किसके बराबर हो गया बताओ, एंगल सी किसके बराबर हो गया, डीई के सामने वाला एंगल क्या है, एफ, एंगल एफ के बराबर। अब देखो यही सिक्स थ्री प्रॉपर्टीज गिवन एंड थ्री वी डिराइव्ड, राइट? So now you see all angles and all the sides are equal, right? Then both the triangles are going to be what? I mean the front. You see angles आपस में बराबर हो गए, corresponding angles बराबर हो गए corresponding sides के. It means that the both the triangles are going to be what? Congruent triangle. Congruent triangle. Triangle ABC congruent to the triangle DEF. Triangle DEF. अब suppose कोई भी I mean student अगर ऐसे लिख देता है कि सर
ट्रायंगल ए बी सी क्या हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट विद ई डी एफ? क्या हम लिख सकते हैं? दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, दिस इज ओनली करेक्ट। मींस दैट कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, बट ऐसा नहीं है कि एंगल ए इक्वल है ई के। नो, वी आर नॉट सेइंग दैट। व्हाट वी आर सेइंग, एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल डी के। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल ई के। एंगल सी इक्वल है किसके? एंगल एफ के। राइट, मींस दैट बीसी इक्वल है, बीसी मतलब एंगल ए के सामने इक्वल है ईएफ के, ना कि बीसी इक्वल है डीएफ के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब उसके करस्पॉन्डिंग, यू सी, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपकी ट्रायंगल में इक्वल है, इट मींस दैट वी कैन से दैट दिस इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने ये कभी नहीं बोला कि ऑल साइड्स आपस में इक्वल है। नो, corresponding sides of the true triangle and corresponding angles of the true triangle are going to be same, then they both are the, I mean, then they are satisfying the properties of the congruency, right? So that is the concept of the congruent triangle, right? Now just look at the bottom diagram. What it says in the following diagram, the triangle congruent YA ऐसे कैसे, जैसे ये वाला एंगल, एंगल साइड एंड एंगल, राइट? नाउ यू सी एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल एफ के। एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल एफ के। देखते जाओ, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंगल सी इक्वल है एंगल ई के। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। क्या लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एफ डी ई। अगर आप ऐसे लिख देते हो कि सर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद डी ई एफ, विच इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, which is going to be incorrect. This is incorrect, right? Now we understood. All the corresponding angles should be same. All the corresponding sides of the triangle are same, right? Then they are correspondingly going to be congruent and satisfy the properties of the congruency. Understood? The congruent triangle is different from the exact similar triangle. बात को समझो। I mean, see, nahi, congruent triangle exactly same as the exact similar triangle, right? But not the equal triangle. The equal triangle is something different. Equal triangle is also congruent, right? Now you see, this is A, B, C. The all sides are equal. A, B, sorry, A, and the 60, 60, 60, and 60, right? दूसरा कोई ट्रायंगल है डी ई एफ, इसमें भी सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। इट मींस दैट अब आप इसमें तो कुछ भी लिख सकते हो, राइट? मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ। बात समझ आ रही कि नहीं? अब देखो, ट्रायंगल ए बी ए सी ए बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ई डी एफ, बिकॉज ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। आप किसी भी तरीके से उनको आप मैच करा के प्लेस कर दीजिए एक दूसरे को, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। बात समझ आ रही? बट यहाँ पे ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? पॉइंट ई को सी से मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा बताओ? पॉइंट ए को सी से मिलाना पड़ेगा और पॉइंट ई को एफ से मिलाना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, यस, पॉइंट ए को एफ से मिलाना पड़ेगा और पॉइंट बी को डी से मिलाना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो पाएंगे? पूरी तरीके से सुपर इंपोज हो पाएंगे, पूरी तरीके से उसको क्या करेंगे? ढक पाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट? नाउ जस्ट कम टू द नेक्स्ट आई मीन क्वेश्चन। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर congruent with the P, you see, P point congruent with what? M. मतलब angle P is equals to the angle M. Point Q congruent with what? Point Q congruent with N. मतलब point Q angle is equals to the angle N. Point R, angle R congruent with what? Angle L. Right? Means that अगर हम P को M पे सुपर इम्पोज कर दें, P को M पे लाके सुपर इम्पोज कर दें, P को M पे, राइट? और Q को N पे ले जाके सुपर इम्पोज कर दें और R को L पे, तब ये पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ढक लेंगे, राइट? सो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट? बट इन दैट केस आल्सो PQR congruent with triangle MNL, right? But I cannot write PQR also congruent with triangle NML. This is going to be incorrect. This is going to be what? This is incorrect. Understood? So that is the overall concept for the congruent. And further, here they are also explaining the same thing, right? By applying the geometry, right? Whatever I mean suggest, I mean I explain to you in the similar manner, they are also explaining the same thing, right? What they are explaining? They are explaining about the triangle ABC congruent with the triangle DEF, right? Now you see another question in the given figure ABCD and ABEF. ABCD, ABCD. This is look like parallelogram. ABCD means that AB sides look like. Now you see ABEF, ABEF, right? Are the parallelogram. It means that it means what? कि सामने वाली साइड्स इक्वल है, सामने वाली साइड्स इक्वल है। हम इसको ए मान ले रहे हैं, इसको भी ए, और इसको हमने बी माना है और इसको भी क्या? बी मान लिया, ठीक ना? अगर हमने ये ए मानी है बिकॉज पैरेललोग्राम है, तो ए बी ई एफ भी पैरेललोग्राम है। ए गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? ए। और ये जो बी है, सपोज ये जो बी है, ये बी है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट, ये हम इसको हम सी मानना पड़ेगा, राइट? वी कैन नॉट से बिकॉज दिस साइड इज कॉमन फॉर द बोथ द पैरेललोग्राम, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉमन साइड, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉमन साइड। नाउ लुक एट, इन्होंने क्या दिया है? क्या दिया? इफ ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मींस दैट दिस बी इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय हाफ, बी बाय 2 एंड बी बाय 2, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देन सो दैट डीसी, मतलब डीसी व्हाट? दिस इज डीसी इक्वल्स टू दी सीएफ। व्हाट इज सीएफ? अच्छा, मतलब ये डीसी जो होगी, सी डी बोलो या सी एफ, ये दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। और सी एफ, सी एफ के बराबर क्या होने वाली भाई? ई एफ। दिस इज अवर प्रूफ, दिस इज गोइंग वी हैव टू प्रूव, राइट? नाउ लुक एट, वी आर अगेन गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज व्हाट? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। नाउ लुक,
How we can do that? How we can do that? Now you see angle AOB, angle AOB, because now the properties जो हमने क्लास 6 में सीखी है, when two lines are intersect each other, when the two lines are intersect each other, then these the opposite angle means this angle is going to be equal to this, and this opposite angle equals to the this. This is the property of the when two two non parallel lines are intersect, then opposite angle are going to be equal, right? Means that हमने ये मान लिया है कि AF is the one I mean non parallel with the BC, and they are intersecting at point O, means that the angle AOB, so this is going to be angle AOB equals to what? एंगल COF ये इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC, मींस दैट दिस साइड OB इक्वल्स टू व्हाट? OC। अब देखो ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है ना? नाउ यू सी ये चीज दी OB इक्वल हो गई OC, ये भी इक्वल हो गया। नाउ यू सी एंगल, भाई ये भी अपोजिट एंगल होते हैं, AOC सॉरी OBA OBA ओके। हाँ, बिकॉज़ दिस इज A साइड, तो ये भी एक एंगल हुआ OBO ओ सॉरी OBA ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है ना? नाउ यू सी कि OCF OBA एंड सॉरी एंगल ऑफ OC एंड OCF, okay OCF, ठीक है, एंगल दिस एंगल, राइट? नाउ यू सी one more properties which we learn, I mean when two lines are perpendicular, sorry, two lines are parallel and one non parallel lines are going to be intersect, right? Then this angle, right, this corresponding angle, they are also going to be equal, right? Means that this angle is going to be equal with this, and this side equals to this angle is also equals to this, means that इसके opposite वाली side ये एंगल, ये वाला एंगल इसके अपोजिट था, सॉरी ये एंगल इसके बराबर था, तो इसके सामने साइड की लेंथ ए है, ए, इट मींस दैट इसके भी एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? ये ए होगी। प्रूव हो गया। यहां से देखिए बिकॉज़ द ट्रायंगल ट्रायंगल एओबी एंड द ट्रायंगल एफसीओ गोइंग टू बी व्हाट? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं, तो मतलब आप समझ जाइए कि ये वाला जिसके सामने जो भी एंगल होगा, मतलब ये वाली साइड ये ए के बराबर हो गई, ये बी/2 के बराबर हो गई, ये जो साइड हमने सी मानी थी, ठीक है ना? अभी उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और पूरी साइड हमने क्या मानी थी? एएफ को क्या माना था? एएफ को हमने क्या माना था? सी लेंथ माना था। अब ये एंगल जब इसके बराबर है और ये एंगल इधर वाली लेंथ कवर करेगा, ये एंगल इस वाली लेंथ को कवर करेगा, मतलब दिस इज आल्सो गोइंग टू बी सी/2 एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी सी/2। तो ये एक तो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, मतलब एक तो ओ ओए इक्वल्स टू व्हाट क्या हो गया? ओएफ भी हो गया, ठीक है ना? और एबी इक्वल्स टू क्या हो गया? एबी इक्वल्स टू सीएफ हो गया, एंड एबी इक्वल्स टू क्या हो गया? CD already given है. This is given from the parallelogram. Then AB equals to what? AB equals to already EF. This is also given from the parallelogram. Then we can write that कि AB अभी इक्वल हो गया था किसके? CF के। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं जब ये आपस में बराबर हैं, then CD equals to CF and CF equals to EF। कह सकते हैं कि नहीं कर सकते? खाली इसमें आपको इस पूरे थ्योरम में आपको दो चीजें याद रखनी है। When two lines are intersect, when the two non-parallel lines are intersect, then opposite angle are going to be equal. Opposite angle is going to be equal. When the two parallel lines intersect by the one non-parallel line, then there is a corresponding angles also going to be equal. Corresponding angles also going to be equal. This angle is also going to be equal with this angle, right? So these are the basic properties, geometrical properties which we have studied in a class 6, right? Either we can say, I mean, class 8 also, right? So from there we can apply the theorem, and we can usually, and apart from these two theorems, right, we are also applying the congruent theorem, where the we are talking about the ASA, matlab angle side angle, here the side angle and side, right? Both the congruent properties we are togetherly apply in order to prove the theorem whatever mentioned in a given question, right? Now just look at this is one of the, I mean, homework problem, right? So you guys, I mean, you can try. I will little bit I'm going to explain to you, right? क्या दिया हुआ है in a given figure? ABCD is the square. ABCD are the square, means that A I can assume the both all four sides are equal, right? And AM is the midpoint of the AB. AM is the midpoint of the AB, means that the AM is going to be A/2, and this is also going to be A/2, right? A/2. And PQ PQ is the perpendicular to the CM, means that this angle is 90 degree, and this angle is also going to be 90 degree. This angle is also going to be 90 degree. Now you see CB produced meet, क्या कह रहा है? CB produced CB, what CB? Okay, this BC produced meet the point Q, ठीक है ना? Then prove that PA equals to the BQ. PA equals to the BQ. PA equals to the BQ. How we can do that? How we can do that? Now you see. Just I'm going to be rough whatever extra information I'm mentioning here. Just now see. So you see कि AB का midpoint क्या है? M. This is going to be A/2. This is going to be A/2. Now you see. Now you see. This is one line. Another two lines, I mean, two non-parallel lines are intersecting. Then the opposite angles are going to be same. मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया बेटा? हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया, राइट? अब now you see कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और ये इधर भी ये टोटल कितना हुआ जाके 90 डिग्री,
ये कितना हुआ जाके 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ पूरा? ये पूरा 90 हुआ। इधर देखिए, इधर पूरा इधर वाला एंगल इक्वल है, ठीक ना? जिधर जितना इसमें 90 में ऐड हुआ a/2 ये वाला एंगल ऐड हुआ, उतना ही 90 में ये कम हो गया, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को देखो, आई मीन द ट्रायंगल वेट, लेट मी फुल्ली एक्सप्लेन टू यू थ्रू बाय लाइन, वन स्टेप बाय स्टेप, जस्ट हार्डली 10 मिनट गेम, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ठीक ना? द एंगल ABC, एंगल ABC, uh, angle A means this angle, because this is the square, this angle equals to this, right? And MBQ, okay, MBQ, yeah, this is the, this is the extended side, this is perpendicular side, and this is the one length, this is 90 and this is also 90, okay? Then angle AMP means this angle equals to the angle BMQ, opposite angle है, when the two non parallel lines are intersecting, then these angles are equal, vertically opposite, right? Then AM equals to BM, because M is the midpoint of the AB, बिल्कुल सही है. Then we can say that PAM, now you see, दो एंगल बराबर हो गए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है ना? और ये वाली साइड a/2 और a/2, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा? एंगल साइड एंगल. अगर एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल PAM कॉन्ग्रुएंट विद, बहुत ध्यान से लिखने की जरूरत है. अब यहाँ पे देखो PAM कैसे लिखें कि ये वाला एंगल किसके बराबर हुआ होगा? ये Q के बराबर हुआ होगा, ध्यान से देखो. तो हम क्या लिख सकते हैं? Q और देखो PAM कर रहे हैं ना, PAM, तो हमने Q लिख लिया. उसके बाद हम लिखेंगे QBM, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ जाके, मतलब P पॉइंट Q के कॉन्ग्रुएंट है, A पॉइंट B के कॉन्ग्रुएंट है और M पॉइंट किसके? M तो कॉमन पॉइंट है, तो M के कॉन्ग्रुएंट होगा. इट मींस दैट वी कैन से दैट द PA इक्वल्स टू BQ, PA इक्वल्स टू BQ, बिकॉज़ PA इक्वल्स टू BQ, बिकॉज़ इनके सामने वाला एंगल क्या है? बराबर है. Now you see, now we are moving toward the second proof, right? Then triangle PAM congruent with the triangle QBM, जो अभी just prove किया था. Then PM equals to what? QM. PM equals to what? QM, because the congruent है, ठीक है ना? Now you see कि angle CMP, यहाँ पे देखो, एंगल CMP, this is 90 degree angle. Now you see angle CMQ 90 degree. Now you see CM is the common side for the both the triangle, this triangle and this triangle, right? CM is the common side. अब देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, जैसे ये देखो ये चीज, यहाँ हम अगर दोबारा ड्रा कर लेते हैं, बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बिकॉज टू मच किच पिच इज देयर, राइट? सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. नाउ यू सी दिस इज ए बाई, ओ सॉरी, दिस इज PM एंड Q, राइट? बट ये दोनों साइड इसके बराबर है, राइट? और ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए. अब देखो, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसी के कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, राइट? और बीच का एंगल सेम है, मींस दैट कैन आई से PMC congruent with QMC, right? Means that P point congruent with what? Q point, right? And the M is the common point, means the this is the common, and the C is also the common, right? Common, right? तो यहाँ पे देखो, ट्रायंगल PMC congruent with QCM, सॉरी, हमने क्या लिख दिया? QMC, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो. आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ. QCM, राइट? बिकॉज द C point and M point both are common point, right? Then either you can write QMC, either QCM, right? In both the cases, the congruency theorem going to be applied the same, right? The triangle PMC. Now you see the CP equals to what? CP equals to what? मतलब PC equals to what? CQ. और CQ को हमें पता है, CQ को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस BQ, BC प्लस BQ, BC प्लस BQ. और BC बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? BC बराबर क्या लिख सकते हैं? AB. BC बराबर AB लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द स्क्वायर, राइट? सो दिस साइड. एंड BQ बराबर क्या लिख सकते हैं? PA, which is we have already proved in a previous theorem. So this was the, overall, I mean, the proved theorem, right? So this was the today's lecture. Hopefully you guys, I mean, enjoyed a lot whatever we are going, I mean, I explained to you.